Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 12th. In the last class we were doing the inverse trigonometry for last few classes. We have already done all the concepts related to inverse trigonometry, all the concepts including the domain range of the inverse trigonometry function, then the identities, all the concept related thing we are through. Now we have to do questions relating to those concepts. So first of all, I am doing the question of simplifying based. Simplify वाले क्वेश्चन होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में. सिंप्लीफाई द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, tan इनवर्स या sin इनवर्स या cos इनवर्स समथिंग, तो इनको बोलते हैं सिंप्लीफाइंग टाइप क्वेश्चंस. तो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ सिंप्लीफाइंग टाइप क्वेश्चंस. सो दिस इज अ क्वेश्चन, यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस. नाउ व्हेनेवर इन स्क्वायर रूट, अब कुछ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जो हमें याद भी करने हैं, हम यूज भी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, खासकर वो होते हैं 6 टाइप के होते हैं. If we are having root of 1 minus x square, so in this case I have to put x equals to sin theta or cos theta, so that this root can be, because the 1 minus sin square is cos square, the root will be cos theta. In case of 1 plus x square, I have to put x equals to tan theta or cot theta. In case of root x square minus 1, I have to put x equals to a sec theta or x equals to sec theta or x equals to cosec theta. In these three cases जब भी ऐसा होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल वेल नोन चीज है, ये आगे भी कभी काम आएगी. अगर ये चीजें होती हैं तो हम x को sin या cos पुट करने से रूट हट जाता है. चेक कर सकते हो. 1 minus sin square is cos square, 1 plus tan square is secant square, and secant square minus 1 is tan square. So this will give me the values without root, all these. अच्छा, इसी में एक मैनिपुलेशन और भी होती है, इसी का एक पार्ट बन जाता है क्या, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसमें क्या करते हैं, यही मेन चीज यही यूज होती है, वो क्या बन जाती है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, क्योंकि ए लाने पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन वो कॉस बन जाएगा. इन द सेम वे इससे रेट क्या करता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इससे क्या रेट करता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो इस केस में आई विल पुट एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, और इस वाले में आई विल पुट एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा. इन ऑल दीज केसेस, these will give the value which is without square root. This is very important from trigonometry point of view, from integration जब भी उसमें यूज हो सकता है इसका, खासकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होगा इसका. ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन वी आर हैविंग 1 plus x square, so I will use this tan या फिर cot. तो by seeing this I will put x equals to tan theta. We have to put the variable as some trigonometric function so that it can be simplified. I am putting x equals to tan theta. This will give me tan inverse, this will be 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta square root minus 1 upon tan theta. That will give me the value as tan inverse 1 plus tan square theta is secant square theta, उसका root will be sec theta, तो sec theta minus 1 upon tan theta. So that will be tan inverse sec theta will be 1 upon cos theta minus 1 upon sin theta upon cos theta. That means that will give me tan inverse 1 minus cos theta upon cos theta cancel, तो यहाँ बन गया sin theta. Now very important formula of class 11, I was using that 1 plus cos angle, 1 plus cos theta is given by 2 cos square theta by 2, and 1 minus cos theta is given by 2 sin square theta by 2. बहुत बार यूज होता है फॉर्मूला. 1 plus cos angle 2 cos per half angle, 1 minus cos angle is 2 sin per half angle. और एक फॉर्मूला होता है sin theta का, sin theta is given by 2 sin half angle cos half angle, 2 sin half angle cos half angle. So I will use here, I will get that tan inverse 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2 upon sin theta is given by 2 sin theta by 2 into cos theta by 2.
2 and 2 gets cancelled out, sine and sine gets cancelled out, we are left with tan inverse tan theta by 2. Now tan inverse tan x is given by x, which is theta by 2. So half, now what is theta? Theta will be tan inverse x. tan यहाँ के tan inverse हो गया, that means I can say half tan inverse x. ये इसका आंसर, इसकी सिंप्लीफिकेशन ये हो गई. डिफरेंशिएशन में भी इसका यूज होगा, सिंप्लीफाई करके देन उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, वो आगे आएगा. तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है. सिंप्लीफिकेशन में क्या करते हैं, जो वेरिएबल अंदर होता है, अगर अंदर वेरिएबल है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो उस वेरिएबल को कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पुट करते हैं सो दैट दैट कैन बी सिंप्लीफाइड. बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan की कोई चीज बनाएंगे सो दैट tan इनवर्स tan x जो है वो x बन जाए और वो सिंप्लीफाई हो. So this was first question of simplifying type. Let us do the second question of simplifying type. I am doing the question, this question. You have to simplify tan inverse 3a square x minus x cube divided by a cube minus 3ax square. And you are also given that a is positive and minus a by root 3 less than x is less than plus a by root 3. This is the question. We have to simplify. We have to simplify. Now simplify करने के लिए हमें फॉर्मूला देखना पड़ता है, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर बन रहा है, so that this question can be solved easily. तो अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो भाई ये जो चीज है, ये चीज जो बन रही है, ये किसका फॉर्मूला बन रही है और कैसे बनेगी. तो इसके लिए मैंने क्या किया, इतना बड़ा अंदर वाला फॉर्मूला देखने के लिए tan की टर्म में सिर्फ एक ही फॉर्मूला ध्यान में आता है, वो होता है tan 3 थीटा. तो tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला आता था वो क्या था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. कुछ ऐसा बना लूं अगर इधर कि इस टाइप का ही लग रहा है. उसके लिए मुझे यहाँ पर 1 चाहिए. तो यहाँ पर 1 लाने के लिए मैंने क्या किया, अंदर मैंने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए क्यूब. अंदर ताकि ये फॉर्मूला दे दो, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 बनाना. तो ये बन गया tan इनवर्स ए क्यूब से डिवाइड करने पर ए स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बन गया 3x बाई ए माइनस ए क्यूब, तो ये बन गया x अपॉन ए होल क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब अपॉन ए क्यूब हो गया 1 माइनस 3, एक एक कटने पर 2a रह गए, तो ये बन गया 3x अपॉन ए का होल स्क्वायर. ये बन गया. इसका मतलब अब ध्यान से देखो, जहां जहां पर यहां पर x अपॉन ए, अगर वहां पर tan थीटा पुट कर दिया जाए तो कुछ आइडेंटिटी बन जाएगी. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग दिस x अपॉन ए एज tan थीटा. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग दिस x अपॉन ए एज tan theta. That will give me the value as tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. That means this is tan inverse, this will be tan 3 theta. Now tan inverse tan x is given by x, which is 3 theta. And theta will be tan inverse x by a. तो this will be 3 tan inverse x by a. अब फिर से वही बात है, यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये tan inverse tan x की वैल्यू x तब होती है जब वो उसकी प्रिंसिपल रेंज में जाता है और वो जाएगा. अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में तुम्हें चेक करके भी दिखा दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन में चेक करके तुम्हें दिखाऊं तो क्या है भाई, यहाँ पर आ क्या रहा है यार, 3 थीटा. अब x अपॉन ए है tan थीटा, तो पहले इसको x अपॉन ए, गिवन कंडीशन में पहले मैं x अपॉन ए कैसे बनाऊं, डिवाइड बाय ए कर सकता हूं. क्यों, क्योंकि a तुम्हें पॉजिटिव गिवन है. अगर a नेगेटिव होता तो डिवाइड करने में इनइक्वालिटी चेंज होती, बट a क्या है, पॉजिटिव. आई कैन डिवाइड बाय ए. मैं बता रहा हूं ये यहाँ पर ये 3 थीटा आ गया, तो इस कंडीशन का क्या यूज है इसके अंदर. तो डिवाइड बाय ए होने पर ये बन जाएगा माइनस 1 बाय रूट 3 लेस देन x बाय ए लेस देन प्लस 1 बाय रूट 3. ये बन गई कंडीशन. अब x अपॉन a को what I have put x upon a as tan theta. So this will be tan theta minus 1 by root 3 less than plus 1 by root 3 यहाँ में.
अब ये जो tan थीटा है इसके बीच में है, इसका मतलब tan थीटा ये क्या हो गया -π/6 लेस देन थीटा लेस देन +π/6। अगर tan थीटा इसके बीच में है तो थीटा इन दोनों के बीच में हो गया। अब यहाँ पर tan इनवर्स tan x में जो x आ रहा है वहां पर एंगल क्या है 3 थीटा और यहाँ पर क्या है थीटा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, दैट विल गिव मी -π/2 लेस देन 3 थीटा लेस देन π/2। दैट मीन्स ये जो 3 थीटा आ रहा है ये -π/2 से +π/2 के बीच में है। दैट मीन्स ये जो 3 थीटा यहाँ पर जो एंगल है दिस इज इन द प्रिंसिपल रेंज ऑफ दैट tan इनवर्स। सो ये 3 थीटा बन गया और इसका ये सिंपलीफिकेशन हो गया। ये जो कंडीशन देते हैं इस कंडीशन का यूज यही होता है कि वो जो हुआ है उसको रेंज बना देता है, सो दैट वो tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होती है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स tan x की वैल्यू x हमेशा नहीं होती, कंडीशन के साथ होती है, इसलिए इनको ये कंडीशन देनी पड़ती है क्वेश्चन में। तो इस कंडीशन का यूज ये है इसके अंदर। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन related to the simplifying type questions. One question is tan inverse cos x upon 1 plus sin x. tan inverse cos x upon 1 plus sin x क्वेश्चन है। अब इसमें मैं बच्चों को हमेशा ये बताता हूँ, वैसे तो एक मेथड से और से हो जाएगा, बट इसमें मैं बताता हूं कि मेरे पास 1 के साथ जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस का होता है कोई एंगल और 1 माइनस कॉस का होता है कोई एंगल, और सिंगल में फॉर्मूला होता है साइन का, कोई भी एंगल हो एंगल। ये 3 फॉर्मूले होते हैं मेरे पास। 1 प्लस कॉस एंगल इज 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, 1 माइनस कॉस इज 2 साइन, अभी लिखवाया था, और साइन एंगल इज 2 साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल। अब यहां पर क्या है, सिंगल में तो कॉस है, सिंगल में मुझे साइन चाहिए। सिंगल में आई नीड, मान लो एंगल एक्स ही है सपोज, सिंगल में मुझे क्या चाहिए साइन, और 1 के साथ मुझे कॉस चाहिए। यहां पर उल्टा है, सिंगल में कॉस है 1 के साथ साइन है। तो पहले इसको ठीक से बना लो। कैसे ठीक से बना लो? आई विल राइट दैट tan इनवर्स, ये जो कॉस है इस कॉस को आई कैन राइट साइन π/2 माइनस एक्स यूजिंग 11th क्लास मेथड, बिकॉज कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, किया हुआ हमने 10th क्लास में किया था ये चीज। तो cos x को आई कैन राइट, cos को साइन में किया चेंज, एंगल को 90 से माइनस कर दिया π/2, तो डिवाइड बाय सेम यहां किया 1 प्लस, अब ये साइन इसको लिख दिया cos और एंगल को π/2 से माइनस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि 1 के साथ cos का फॉर्मूला होता है प्लस हो चाहे माइनस हो, और सिंगल में होता है साइन का, तो सिंगल cos को साइन किया और 1 के साथ cos बना दिया। अब ये बन गया फॉर्मूला। कैसे? tan इनवर्स, ऊपर है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन x क्या होता है 2 साइन हाफ एंगल cos हाफ एंगल, 2 sin half angle cos half angle, that means 2 sin π/4 minus x/2 half angle, 2 sin half angle π/2 minus x का आधा, फिर cos half angle, then divide by 1 plus cos हो गया 2 cos square half angle, तो हाफ एंगल विल बी π/4 माइनस x/2, दैट मीन्स 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, 2 एक स्क्वायर से cos n गेट्स कैंसल्ड आउट। बाहर है tan इनवर्स एंड अंदर वी आर लेफ्ट विथ tan π/4 माइनस x/2, which will give me the value as π/4 माइनस x/2। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। कभी कभी क्या होता है इसी सेम क्वेश्चन में, मैं ये करवा नहीं रहा, कि बाहर tan इनवर्स होता है लेकिन अंदर डिवाइड करने में ऊपर cos नीचे साइन हो जाता है, तो वो कॉट बन जाता है। अगर वो कॉट बन गया, बाहर tan इनवर्स है, तो उस कॉट को tan करके एंगल को 90 से माइनस कर दो, तो वो tan हो जाएगा, फिर tan इनवर्स tan x मुझे x दे देगा। अगर tan बन गया तो फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर वो कॉट बन गया तो उस कॉट को अगले स्टेप में tan करके एंगल को π/2 से माइनस कर देंगे। बाहर tan इनवर्स है, अंदर tan, तो जो अंदर बच जाएगा उसका आंसर आ जाएगा। Now I am doing a question, tan inverse 1 plus x root plus minus root 1 minus x divide by
1 plus x root plus root 1 minus x. That will give me the value as, प्रूव करना है, दिस वी हैव टू प्रूव, लेकिन ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन वाला है, इसको सिंप्लीफाई करके ही आएगा। प्रूव करना है पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। दिस इज द क्वेश्चन, पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x करना, ये लेफ्ट हैंड साइड इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाइंग में जब भी जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज है, जब भी रूट के साथ 1 प्लस एक्स में रूट होगा इस तरीके से 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, और रूट हटाना है, मतलब अंदर स्क्वायर चाहिए, तो एक्स अगर कॉस थीटा होगा, इफ एक्स विल बी कॉस थीटा, इफ एक्स विल बी कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस हो चाहे 1 माइनस कॉस हो, स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो सिर्फ उसको माइंड रखते हुए मैंने क्या किया, एक्स को आई एम पुटिंग एज कॉस थीटा, दैट मींस दिस विल बी tan इनवर्स ब्रैकेट, this will be 1 plus cos theta plus 1 minus cos theta divide by 1 plus cos theta plus 1 minus cos theta, ऊपर है माइनस, सॉरी माइनस ऊपर आ गया, नीचे आ गया 1 minus cos theta. Now I am writing it directly, tan inverse, I am writing it directly what, 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. उसका root will give me root 2 cos theta by 2. ऐसे 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. उसका root will be root 2 sin theta by 2. Divide by root 2 cos theta by 2 plus root 2 sin theta by 2. This root 2 cos theta by 2 minus root 2 sin theta by 2 plus root 2 cos theta by 2, ये तुम्हारे पास इसके अंदर आ गया। अब पहले तो root 2 कॉमन ले कट गया, root 2 हटने पर क्या बन गया, root 2 कॉमन ले कट जाएगा, will take common and this will be cancelled out। अब जब भी बाहर tan इनवर्स हो, अंदर बन जाए cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, या फिर cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन बन जाए, ऐसे में cos से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ऐसे में cos से डिवाइड करने पर क्या बन जाए, cos अपॉन cos हो जाएगा 1, sin अपॉन cos हो जाएगा 10, cos अपॉन cos हो जाएगा 1 और sin अपॉन cos हो जाएगा 10। ऐसा करने से फायदा ये होता है, ऐसा करने से फॉर्मूला बन जाता है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का, फॉर्मूला बन जाता है tan पाई बाय 4 माइनस एक्स का, और यहां पे बना है फॉर्मूला, क्या बना है 1 माइनस टेन एक्स, फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, सो आई विल यूज इट हियर, that will be tan inverse, this will be tan pi by 4 minus theta by 2, because here 1 minus tan x is theta by 2, tan inverse tan pi by 4 minus theta by 2, that means tan inverse tan x is x, so pi by 4 minus theta by 2, what is theta, theta is cos inverse x, theta is cos inverse x, so pi by 4 minus half, what is theta, theta is cos inverse x, which is the right hand side. So this is the simplification for this question. So today we have done few questions, of simplifying type. We will continue the question in the next lecture, next video. We will do 2-3 classes for these questions of inverse trigonometry. So till now आज तक हम इतना ही करेंगे, बाकी हम क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।